ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਉਵੇਜਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਐਫਟੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ। ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਰਚਰ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਕਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਰਕ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸਟ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਵਰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਵਿਊ ਔਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਈਟਡ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਰਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਟਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਅਦਰ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਔਰ ਅਨਪਬਲਿਸ਼ਡ ਆਈਡੀਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨਪਬਲਿਸ਼ਡ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਕਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਰਕ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਫਾਰਮੈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਵਰਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਰਕ ਤਾਂ ਵੀ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਨੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਅਰ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਈਟਡ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਈਟਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਈਟਡ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਂਗ ਸੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਾਈਟਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਂਗ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਕਨ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ। ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਈਬਰ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਬ ਤੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ,
और कॉपी करके एज इट इज़ किसी पे पेस्ट कर दिता और अपना दस के उसनों पब्लिश कराने की कोशिश की। तो यह सब चीज़ां जिहड़ियां होंदियां ने डिजिटल प्लैगरिज्म विच आंदियां ने। फिर अनदर होर किहड़े टाइप्स होंदे ने प्लैगरिज्म दे, ते वर्ड टू वर्ड तुसी कॉपी करदे हो किसी दा वर्क इक्को जिहा बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसे दे वैसे ही बिल्कुल कॉपी कर लेंदे हो। जे किसी दा पैराफ्रेजिंग करदे हो, थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसनूं किसी होर तरीके दे नाल उहियो चीज़ पेश करना चाहते हो। जे तुसी किसी दा आइडिया ही ले लिया, जे किसी ने अपना ऑब्जेक्ट अपना कोई नया आइडिया कंसैप्चुलाइज किया है और उस आइडिया ते वो वर्क कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, और तुसी उस आइडिया नूं अपने हिसाब नाल लगा के अपना पेश करने की कोशिश की। जे तुसी किसी दी ऑथरशिप ले ली, किसी होर दे काम नूं अपना नाम लिख कर तुसी पब्लिश करा लिया, तो यह भी प्लैगरिज्म विच आएगा। जे तुसी सैकेंडरी सोर्स ते डेटा ते लिया, लेकिन डेटा लेने की जरूरत होंदी है बहुत सारी जगह ते, क्योंकि असी सैकेंडरी रिसर्च करने तो उहदे विच जरूरत होंदी है कि किसी दा पब्लिश वर्क नूं असीं लैके उसनूं अपने हिसाब नाल कैलकुलेट करके और अपनी रिसर्च विच यूज़ कर सकते हैं। बट ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਤੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਈਟਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕ ਜਿਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਰਕ ਸੈਲਫ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਹੀ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਅਨਪਬਲਿਸ਼ ਪੇਪਰ ਔਰ ਅਨਪਬਲਿਸ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ डिजिटल और साइबर प्लैगरिज्म के अलावा। दिक्कन कंप्लीट प्लैगरिज्म वो कहलाता है जिदे विच सबमिट अनदर ऑथर वर्क्स इन योर नेम। तुसी पूरा ते पूरा पेपर ही ओदा कॉपी कर लिया है, कोई बंदा किसी का पूरा आर्टिकल ही कॉपी कर लेंदा है और ओदे ते अपना नाम लिख के पब्लिश करांदा है, तो उसनूं कहंदे ने कंप्लीट प्लैगरिज्म। सोर्स बेस्ड प्लैगरिज्म वो हुंदा है जिदे विच रेफरेंस जिहड़े हुंदे ने वो इनकरैक्ट हुंदे ने, वो इनकरैक्ट होंगे ने, नॉन एग्जिस्टेंस होंगे ने, उहदा उस पर्टिकुलर आर्टिकल तो या उस बंदे का कोई वजूद ही नहीं होता, वो किते है ही नहीं। तुसी अपनी तरफों कोई नया ही रेफरेंस बना लिया और रेफरेंस उहदे विच आर्टिकल का साइटेड कर दिता या सोर्स बना दिता, तो उसनूं कहंदे ने सोर्स बेस्ड प्लैगरिज्म। डायरैक्ट प्लैगरिज्म वो होंदा है जिहदे विच कॉपी तुसी टैक्स्ट करदे हो, पूरे टैक्स्ट नूं कॉपी करदे हो और वर्ड टू वर्ड पेस्ट कर देंदे हो, उसनूं कहंदे ने डायरैक्ट प्लैगरिज्म। सैल्फ और ऑटो प्लैगरिज्म जिक्र मैं दसिया, तुसी अपने ही पब्लिश्ड वर्क का कुछ मटीरियल लेके तुसी दूजे जनरली रिसर्च मैथडोलॉजी जिहड़ा पार्ट होंदा है जिहदे विच तुसी नॉर्मल एक तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो जनरली कई बारी अनइंटेंशनली भी लोग कर लेंदे ने, उन्हां नूं नहीं समझ आंदा, उन्हां दी अवेयरनेस नहीं होंदी और अपने ही वर्क नूं वो कॉपी करके दस देंदे ने। जिकन ए स्लाइड में लईए तो मैं थले इक सोर्स दे दिता है, तुसी वेख सकते हो सोर्स दिता होया है, तो सोर्स देना कंपलसरी होंदा है कि तुसा कित्थों लईए, कित्थों लिया तुसी वो मटीरियल। फिर जिक्र पैराफ्रेजिंग प्लैगरिज्म होंदा है, उहदे ते होंदा है कि तुसी बहुत माइनर चेंजिस किते, तुसी किसी मटीरियल विच लिया, किसी टैक्स्ट लिया और उहदे विच कुछ माइनर चेंजिस करके दूजे दा वर्क तुसी अपना बना लिया। तो बहुत माइनर चेंजिस जब तुसी करते हो तां भी वो प्लैगरिज्म विच आ जाता है। चेंजिस का मतलब होंदा है जब तुसी किसी दा वर्क नूं रिव्यू भी कर रहे हो, तो फिर तुहानूं उसनूं अपना बनाना वास्ते पूरा चेंज करना होंदा है, साथ नाल ही सोर्स भी देना होंदा है कि कित्थों तुहाडी इंस्पिरेशन कित्थों सी। दैन मोसैफिक प्लैगरिज्म वो होंदा है जिहदे विच इंटर रिले समवन एल्स, मतलब तुसी किसी होर नूं किसी कनैक्ट जबरदस्ती कनैक्ट करके तुसी किसी होर दा वर्क अपने हिसाब नाल ले लिया, तुसी किसी होर दी फैसिंग नूं अपने टैक्स्ट विच मतलब कन्वर्ट किया और उसको प्रिंट करा लिया। एक्सीडेंटल प्लैगरिज्म जिक्र मैं तुहानूं कहा है कि अनइंटेंशनल पैराफ्रेजिंग और कॉपिंग भी होंदी है, क्योंकि तुहानूं अवेयरनेस नहीं है, निगलेंसी है, तुहानूं उन्नी अवेयरनेस नहीं है, तुहानूं पता ही नहीं है कि ये चीज़ कॉपी करने का मतलब प्लैगरिज्म विच आऊगा। तुसी किसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ले लिया और डेफिनेशन तुसी यूज़ कर रहे हो मन के कि ये स्टैंडर्ड है, पर तुसी उहदा बंदे का नाम लिखना भूल गए, तो वो कहलाता है एक्सीडेंटल प्लैगरिज्म।
ਇਨਐਕੂਰੇਟ ਆਥਰਸ਼ਿਪ दैट मीन्स ਤੁਸੀਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਐਕੂਰੇਟ ਆਥਰਸ਼ਿਪ। फिर आंदा है व्हाट इज सैल्फ प्लैगरिज्म। जेकर मैं तुहानू दसिया कि तुसी कॉपीराइट करके तुसी अपने ही वर्क नू किसी स्पेसिफिक कोट नू लेकर और तुसी दूजे वर्क विच अगर यूज़ कर लेंदे हो तो उसनू कहंदे ने सैल्फ प्लैगरिज्म। फिर आंदा है वाई डू पीपल प्लैगराइज। पीपल कॉपी करते क्यों ने, चोरी क्यों करते हैं भाई, अपना वर्क क्यों नहीं करते। तो ਉਹਦਾ रीज़न हो सकता है पहला कि इग्नोरेंस है, बंदे नू पता ही नहीं है कि वो प्लैगराइज हो रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है लेकिन उसनू अवेयरनेस ही नहीं है कि किसी दा भी वर्क अगर ले रहे हो और उसमें चेंजेस भी कर रहे हो तो तुहानू सोर्स देना है। दैन लैक ऑफ नॉलेज ऑन द एथिक्स ऑफ स्कॉलरी, दैट मीनस राइटिंग, दैट मीनस हाउ टू राइट, किक्कड़ लिखते किक्कड़ ने, कोई भी चीज़ आर्टिकल कोई रिसर्च किक्कड़ लिखते हैं, वो कोई एथिक्स होंगे ने, नॉर्मल एथिक वैल्यूज़ अगर तुहानू नहीं पता है, ਉਹਦੀ जानकारी नहीं है कि किस तरह तुसी कॉपी कर सकते हो, की कॉपी कर सकते हो, की नहीं कर सकते हो, और सोर्स किक्कड़ देना है, साइटेड किक्कड़ करना है, जो तुहानू ये नहीं पता है तां भी वो गलती हो जाती है। कई बारी कॉम्पीटिशन के चक्कर विच बहुत अगे बढ़ना है, बहुत फास्ट जाना है, मैनू भी जल्दी जल्दी करना है और मेरा अपना आइडिया नहीं है और मैं किक्कड़ तरक्की करा, मैं किस तरह अपना प्रमोशन ला, उस चक्कर में भी तुसी कई बारी बहुत सारी लोग की जड़ा है कॉपी कर लेंदे ने। दैन कई बारी प्रेशर होंदा है, सीनियर्स का प्रेशर होंदा है कि बाकी सारे काम कर रहे हैं, तुसी क्यों नहीं काम कर रहे, तुहाडा रिसर्च क्यों नहीं हो रहा, तुसी कुछ नहीं लिख रहे, तुहानू कुछ नहीं आता। इस तरह का प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, वर्क कल्चर प्रेशर भी होंदा है, जिहदे कारण लोग जिहड़ा हुंदा है प्लैगराइज कर लेंदे ने। कई बारी बहुत जल्दी विच असी काम करने तो असी भूल जाने, कई बारी असी इंटेंशनली नहीं करने, लेकिन असी काम किया, काम करने के बाद असी बहुत फास्ट सबमिशन किया और असी साइटेड करना किसी को भूल गए, किसी को रह गया, किसी को चला गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कई बारी गलती हो जाती। हुण क्वेश्चन आता है, सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि असी अवॉइड किक्कन कर सकते हैं, किक्कन अवॉइड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट होता है टू समराइज करके तुसी प्लैगरिज्म नू अवॉइड कर सकते हो। किक्कन आप जिन्हों रेफरेंस लिखना है, ओरिजिनल सोर्स लिखना है, जितों भी तुसा वो काम लिया है, जिथे भी तुसी वो आइडिया और टैक्स्ट जितों भी लिया है उसनू तुहानू रेफरेंस करना है, ओरिजिनल सोर्स लिखना है कि कित्थों लिया है, और वो बहुत ही शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव वे विच होना चाहिए कि जिथे विच ओहदा पूरा क्लीयर होए, ओहदा ना ओहदा पब्लिकेशन वो पूरा लिमिटेड सोर्स विच लिखिया होए और उसनू मतलब अपने वर्ड्स विच लिखना है, सेम कॉपी नहीं करना है। आपनू जड़ा भी चीज़ लो उसनू अपने वर्ड्स विच चेंज करो और बहुत ही कम चांस होए कि उहदे विच तुसी कोटेशन यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज कोशिश करो कि पूरा अपना वर्क होए, लैंग्वेज पूरी चेंज होए, तुहाडा अपना आइडिया होए, तुहाडा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होए। फिर आंदा है तुसी सैकेंड नंबर आता है कि तुसी प्लैगरिज्म करते हो जड़ा तो ओरिजिनल रेफरेंस के नाल तुहाडा होना जरूरी है कि तुसी जिस तरह तुसी ये देख सकते हो, ए पूरा दी पूरा जब मैं हुणे आप आगे जाके आप जी नू सॉफ्टवेयर विच भी प्लैगरिज्म किक्कन चैक करते हैं, मैं दसांगी। ए पूरा दा पूरा पेपर का पैराग्राफ लिखिया होया है और वो कित्थों लिखिया होया है, कॉपी किया हुआ दस रहा है। 34% जड़ा है वो कॉपी है, और पूरा दी पूरा पैराग्राफ जड़ा है वो कॉपी है। सो ओरिजिनल अगर सोर्स नहीं लिखोगे तो ये पूरा कॉपी कहलाएगा, और तुसी अपने वर्ड विच भी नहीं चेंज किया तो ये पूरा प्लैगरिज्म कहलाएगा। फिर तीजा होंदा है कोट्स, तुसी कोटेशन यूज़ करते हो जिकन ये डेफिनेशन है और ना नहीं लिखिया, किसने लिखी हुई है, तो फिर वो भी प्लैगरिज्म विच आएगा। बहुत सारे कामां विच असी कोट्स यूज़ करने हैं और वो कोट्स जिहड़ा रहिंदा है कि वो एग्जैक्ट उन्नी लेंथ का, उन्ने ही अक्षर, उन्ने ही वर्ड्स उस तरह का ही होंदा, सेम तुसी ले लेंदे हो, लेकिन तुसी उसनू कोट ही नहीं करते। तुसी बंदे का नाम लिखना बहुत जरूरी है, कित्थों लिया है, किसकी डेफिनेशन। फिर सब तो इंपॉर्टेंट हुण क्वेश्चन आता है कि साइट किक्कन करना पैंदा है, साइट का प्रोसेस की है। साइट के बहुत सारे प्रोसेस होंदे ने, जिहदे डिपेंड करता है कि आप जी नू आर्टिकल और रिसर्च पेपर और तुहाडी रिसर्च तुसी कित्थे पब्लिश कराना चाहते हो।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਜਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਰਨਲ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ MLA ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਕਨ ਤੁਸੀਂ APA ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਕਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ अपना वर्क पब्लिश कराना चाहते हो, उस पब्लिश वर्क कराने दे टाइम तो पहला तुसी उस सबमिशन तो पहला तुहानू कोर्ट नू टैक्स नू अलग अलग एरिया हिसाब नाल साइट करना है। जिकन तुसी देख सकते हो इनडायरैक्ट कोर्ट होंदा है, जिहदे विच तुसी वर्क अपना काम जो भी तुसी काम कीता है उहदे अपने वर्ड्स विच लिख रहे हो, और उहदे बाद उहदा बंदे दा नाम और उहदा जिहड़ा पेज नंबर है वो लिख रहे हो। दूजा तरीका होंदा है कि तुसी डायरैक्ट कोट कर रहे हो, जिहदे विच तुसी उसी ऑथर का नाम ही लिख रहे हो कि उस ऑथर ने ही क्या है कि चिल्ड्रन आर टोटली इनसेंसिटिव एंड टू देयर पेरेंट्स। तो उसने डायरैक्ट उन्होंने इत्थे नंबर इत्थे कोट कर दिता पर ना इत्थे कोट किया, इसनूं डायरैक्ट बोलते हैं। इनडायरैक्ट होए कि तुसी दे दिस ऑथर्स रिसर्चर इकन दा वर्ड यूज़ करते हो, बट जी लास्ट विच उहदा नाम यूज़ करते हो। पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग उसनूं किया जाता है, जिहदे विच तुसी पूरा ओवरऑल अपने वर्ड्स विच लिख लेंदे हो उस बंदे दा वर्क, और उसनूं लास्ट विच कोट करते हो। फिर आंदा है तुसी बुक या जर्नल विच अगर करते हो, तो बुक या जर्नल विच जिक्र मैं तुहानूं कहा अलग अलग गाइडलाइनस पब्लिकेशन हाउस और जर्नल्स की अलग अलग गाइडलाइनस होंदियां ने। उन गाइडलाइनस के हिसाब नाल ही आप जी नूं साइट करना पैंदा है। तो जिकन पेज नंबर है, जिकन ऑथर दा नेम है, फिर तुसी की टाइटल तुहाडा की सी तो टाइटल है, इस तरह तुसी तुहानूं अलग अलग चीज़ां यूज़ करने पेंगे। लास्ट नेम यूज़ किया जा रहा है तो लास्ट नेम यूज़ करोगे, अगर पहला नेम फर्स्ट नेम तो चालू हो रहा है, जिकन दा भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट नूं फॉलो करो। ना किस तरह का वर्क जो तुहानूं है ना साइट करना होता है, तो साइट करने वास्ते तुहानूं है ना पेपर प्रेजेंटेशन, अगर तुसी किसी दा प्रेजेंटेशन लिया है तुसी उसनूं भी साइट कर सकते हो। तो तुसी किसी दा आर्टिकल लिया है तुसी उसनूं भी साइट कर सकते हो। तुसी किसी किस तरह का साइज कर रहे हो तो साइट करने का तरीके विच तुसी अल्फाबेटिकल साइट कर सकते हो, APA स्टाइल भी साइट कर सकते हो, वैबसाइट्स नूं लिंक्स नूं साइट कर सकते हो। अलग अलग चीज़ां होंदियां ने, डिपेंड करता है कि तुसी कित्थे पब्लिकेशन कराना चाह रहे हो। जिकने अलग अलग टाइप्स दिते हुए ने, किकन पब्लिकेशन कराना चाह रहे हो उस हिसाब नाल तुसी डिसाइड कर दो। जिकन अल्फाबेटिकल साइटेड किया होया सरनेम, ईयर, दैन उहदे जितने भी ऑथर ने उन्हों का अगर डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो पूरी डिटेल दी हुई है टाइटल के नाल। तो एक आप जी के उत्ते है कि तुसी किस तरह तो साइटेशन कर सकते हो। तो बुक का साइटेशन है, जिकन तुसी देख सकते हो। ए बुक के हिसाब नाल अगर तुहानूं करना है तो तुहानूं यूज़ करना पएगा ऑथर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल ऑफ एसे, दैट मीनस टाइटल जिहड़ा भी तुहाडे पेपर का टाइटल है, चैप्टर का टाइटल है, टाइटल ऑफ बुक एडिशन, एडिटर का जिहड़ा नाम है वो, सिटी ऑफ पब्लिकेशन जिहड़ी भी सिटी है वो, पब्लिशिंग हाउस, ईयर, एंड दैन पेज नंबर और एंटिटी मीडियम ऑफ पब्लिकेशन। यह पूरा एक फॉर्मेट होंदा है बुक का। अगर तुसी आर्टिकल कर रहे हो तो सेम आर्टिकल विच आ जाएगा लास्ट ना, फर्स्ट ना, टाइटल, दैन टाइटल, एंड दैन ईयर, मंथ एंड मीडियम ऑफ पब्लिकेशन। इस तरह ये पूरा फॉर्मेट चलता है। ये इंटायर वैबसाइट भी तुसी पूरी की पूरी वो लिंक कर सकते हो, जिहदे विच ऑथर, क्रिएटर्स नेम, किसने बनाई है वो वैबसाइट, नेम ऑफ द वैबसाइट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन एफिलेटेड, किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो वैबसाइट बनी हुई है। अगर उसमें कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वह डेट ऑफ रिसोर्स क्रिएशन कद बनी सी हो, मीडियम ऑफ पब्लिकेशन, डेटा एक्सेस। तुसी डेट ऑफ एक्सेस का मतलब है तुसी जिस दिन देखी जिस दिन वो अवेलेबल सी। हो सकता है कोई मटेरियल तुसी इकन दा ले रहे हो, जो मटेरियल हुणे दिख रहा है लेकिन साल भर बाद 6 महीने बाद वो नहीं दिखे, तो तुहानूं डेट ऑफ एक्सेस का सबूत होता है कि तुसी जिस दिन तुसी एक्सेस किया सी उस दिन वो पब्लिश सी, वो कॉमन विच दिख रही सी। जो बाद विच हट गया तो बंदा चेक कर सकता है। फिर पेज ऑन वैबसाइट, इंटायर वैबसाइट में करना है तो पेज करना है तो तुसी वही कर सकते हो। ऑथर नेम, नेम ऑफ आर्टिकल,
नेम ऑफ वैबसाइट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जितो एफिलिएशन होया है, डेट ऑफ रिसोर्स क्रिएशन एंड मीडियम और डेट ऑफ एक्सेस। हुण अगला पॉइंट आता है कि तुसी कुछ चीज़ां हमेशा याद रखनियां ने, वो बहुत जरूरी होंदियां ने। तुहानूं ये समझ आ गया प्लैगरिज्म की होंदा, एक तरह की कॉपी होंदी, एक तरह की चोरी होंदी है। चोरी तुसी इंटेंशनली कर रहे हो कि अनइंटेंशनली कर रहे हो, क्वेश्चन है कि असी चोरी नहीं करना है। ਜਿਹੜਾ भी असी काम कर रहे हैं, साडा रिसर्च है, साडा आर्टिकल है, साडा किसी भी तरह का आइडिया है जिसनों असी पब्लिश कराना चाहते हैं, असी साडी कोशिश पूरी होनी चाहिए कि असी दूजा एक्सपीरियंस लोगों का व्यू लैन, असी उन्हां दा रिव्यू ऑफ लिटरेचर उठाओ, लेकिन उन्होंने अपना बनाने की चक्कर विच चोरी ना करो, उसनों अपने वर्ड्स भी समराइज करो, नाल ही साइटेड करो, प्रॉपर सोच दो कि तुसी इत्थों कंटेंट लिया सी पर तुसी अपने लैंग्वेज उसनों चेंज किया है। बिना रिव्यू ऑफ लिटरेचर के कोई रिसर्च नहीं होती है, सब सारिਆਂ पता है। जो कोई वखरा नवा आइडिया होए तां भी तुसी कितों ना कितों इंस्पिरेशन तो लेंदे हो। जे तुसी इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं होंदा है, किसी का मटीरियल लेना गलत नहीं होंदा है, पर जो उहदा कॉपीराइट है, उहदा पब्लिश वर्क है और जो तुसी सोर्स सही नहीं दे रहे हो, साइटेशन नहीं दे रहे हो, तो एक तरह की ये चोरी होगी क्योंकि तुसी सामने वाले का क्रेडिट खुद ले लिया। तो क्रेडिट देना जरूरी होंदा है एक चंगी रिसर्चर के हिसाब नाल, एक चंगे ह्यूमन बीइंग के हिसाब नाल। ये बहुत जरूरी होता है कि तुसी जिदा भी वर्क लो उसनों प्रॉपर साइट करो। फिर अगे कुछ रिमाइंडर आते हैं, जिकन तुसी जदे भी साइट करो उसनों डबल क्लिक करके वेखो। साइटेशन का सब तो चंगा तरीका होंदा जदे भी तुसी साइट करते हो तो फिर उहदे ते है ना वो अपने आप वो ऑटो करैक्ट विच आ जाता है, और जदे भी तुसी उसे डबल क्लिक करते हो वो जिथे सेव होंदा है, जो जिहड़ी लिंक ते वो सेव होंदा है वो पेपर विखाण लग जाता है। तो तुसी वो करके देख लो, तुसी पूरे लिस्ट विच मैच करके देख लो कि जिहड़ा भी तुसी टेक्स्ट जो भी तुसी साइट कर रहे हो वो साइटेशन प्रॉपर हो, उहदे च कोई गलती ना हो। किसी होर दा काम जे तुसी ले रहे हो तो काम जिहड़ा है प्रॉपर लोकेशन ते प्रॉपर वर्ड टू वर्ड जो साइटेशन का फॉर्मेट है वो तुसी फॉलो कर रहे हो और उसनों प्रॉपर सोर्स ऑफ मटीरियल से कनैक्ट कर रहे हो। तो जरूरी होंदा है कि जे तुसी काम मान लो किसी को क्रेडिट दे भी रहे हो पर वो क्रेडिट अगर उसको यूज़ ही नहीं हो रहा है, तुसा फॉर्मेट ही गलत कर दिता या किसी होर दा ना किसी होर दे पेपर विच यूज़ कर लेता, या तुसी फॉर्मेट विच यूज़ करते वक्त ना नहीं पाया, सरनेम पा दी, ईयर गलत पा दिता, पब्लिकेशन का गड़बड़ पा दी, तो पूरा उहदा क्रेडिट चला जाऊगा और तुसी प्लैगरिज्म विच फस जाओगे। तो प्लैगरिज्म का मतलब ही होंदा है रेफरेंस नूं कॉपी करके नहीं वेखते हैं। सॉफ्टवेयर विच जनरली रेफरेंस नूं अलग कर देंगे ने क्योंकि वो मन के चलते हैं कि जो जे तुसी काम किया है और हर काम नूं तुसी साइट किया होया है, हर काम दे अगे तुसी कित्थे की लिया है लिखिया होया है, तो वो किसी दे सोर्स विच ही है। और जदों रिपोर्ट सॉफ्टवेयर विच जाके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ने जितों तुसी अपना प्लैगरिज्म रिपोर्ट चेक कर सकते हो, और जथे उत्थे जाके तुसी चेक करोगे तो तुहानूं दस दिंदा है कि ये मटीरियल तुसी कित्थों लिया है। जो तुसी वर्ड टू वर्ड कॉपी किया है तां भी दस देगा, जो तुसी चेंज किया है तां भी दस देगा, उहदा परसेंटेज दस देगा। तो तुसा अगर कुछ भी गड़बड़ की है, किसी भी तरीके की गलती साइटेशन की है, तो वो ज़्यादा तुहाडे वास्ते भी खतरनाक है क्योंकि उहदे विच तुसी प्लैगरिज्म विच आ जाओगे, क्योंकि जिहड़ा साइटेड तुसी कीता है वो साइटेशन मिलूगा ही नहीं, लिंक ते सॉफ्टवेयर कैच नहीं कर पाएगा, जो कैच नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली तुहानूं प्लैगरिज्म दसूगा। तो तुहानूं ये बहुत ज़रूरी है कि तुसी उसनूं प्रॉपर साइटेड करो। हुण अगे दे पार्ट विच असीं वेखांगे कि प्लैगरिज्म चैक किया जाता है। जो तुहाडे कोल कोई सॉफ्टवेयर होए तो किस सॉफ्टवेयर लाइसेंस सॉफ्टवेयर तो अगर तुसी प्लैगरिज्म चेक करते हो तो किस तरह की रिपोर्ट बनती है, किस तरह से उसको चेक कर सकते हो कितना किस सोर्स तो कॉपी और किस तरह उसको चेंज कर सकते हो।